अब देखिए, द इफेक्ट ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत रिफॉर्म हुए और बहुत सारे राइट सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में ऐसे ऐसे रीड कर डाले जिन्होंने हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टोटली रिफॉर्म कर दिया। जैसे कि हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, तो इस पे मैं आपको एक केस बताता हूँ, वकील प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मैं ये केस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस केस में हुसैन आरा खातून का केस और ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक भी डिस्कस हुआ था। हुसैन आरा खातून के केस और अब्दुल रहमान अंतुले वर्सेस आर एस नायक के केस में जो एम्फेसिस था वो स्पीडी ट्रायल पे था। ठीक है, दैट वाज ऑन स्पीडी ट्रायल। और उन्होंने नंबर ऑफ डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हुए राइट टू अ स्पीडी एंड पब्लिक ट्रायल एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बना दी। और 11 प्रोपोजिशंस दिए गए थे ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक में। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या प्रोपोजिशंस थे। देखिए, पहला जो था वो ये था कि फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21 एंड इट क्रिएट्स अ राइट इन द अक्यूज टू बी ट्राइड स्पीडीली। ये पॉइंट जो हेल्ड किया था वो हुसैनारा खातून के केस को ध्यान में रखते हुए किया था। मैं अभी उस पर आऊँगा बाद में। Secondly, right to speedy trial flowing from Article 21 encompasses all stage, namely the stage of investigation, inquiry, trial, appeal, revision and retrial. ये जो स्पीडी ट्रायल है ये इन्वेस्टिगेशन पे भी अप्लाई करता है, इंक्वायरी पे भी अप्लाई करता है, ट्रायल पे भी अप्लाई करता है, अपील पे भी अप्लाई करता है, रिवीजन पे भी करता है और रीट्रायल पे भी करता है। Next point that was held was that in every case where the speedy trial is alleged to has been infringed, the first question to be put and answered is who is responsible for delay. Next point that was held was that while determining whether undue delay has occurred, resulting in violation of right to speedy trial, one must have regard to the all the attendant circumstances including nature of offense, number of accused and witnesses, the workload of the court and prevailing local conditions. इस चीज को कोर्ट कहता है सिस्टेमिक डिलेज। ठीक है, वो डिलेज जो सिस्टम की वजह से कॉज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट वाज हेल्ड वाज दैट ईच एंड एवरी डिले डज नॉट नेसेसरली प्रेजुडिस द अक्यूज। सम डिलेज में इंडीड वर्क टू हिज एडवांटेज। हाउएवर, inordinate long delay may be taken as a presumptive proof of prejudice. In this context, fact of incarceration of the accused will also be a relevant fact, and prosecution should not be allowed to become persecution. But when does the prosecution become persecution? Again depends upon fact and circumstances of given case. Next point that was held was ultimately the court has to balance and weigh several relevant factor, balancing test or balancing process, and determine in each case whether the right to speedy trial has been denied. Next point that was held was, ordinarily speaking, where the court comes to a conclusion that right to speedy trial of the accused has been infringed, the charges or the conviction, as the case may be, shall be quashed. But this is not the only course open, and having regard to the nature of the offence and other circumstances, when the court feels that quashing of the proceeding cannot be in the interest of justice, it is open to the court to make the appropriate orders, including fixing the period of completion of trial. Next point that was held was that it is neither advisable nor feasible to prescribe any outer time limit for conclusion of all the criminal proceedings. In every case of complaint of denial of the right of speedy trial, it is primarily for the prosecution to justify and explain the delay. At the same time, it is the duty of the court to weigh all the circumstances of a given case before pronouncing upon the complaint. Next point that was held was that an objection based on denial of the right to speedy trial and for relief on that account should first be addressed to the High Court. Even if the High Court entertains such a plea, ordinarily it should not stay the proceedings except in the case of grave and exceptional nature. Such proceedings in High Court must be disposed of on priority basis. तो ये ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक को कोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट बता रहा है इन द केस ऑफ वकील प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए, मैं ये जजमेंट आपको सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पे सब कुछ समराइज है। आर्टिकल 21 में बहुत कुछ पढ़ना है तो मैं आपका काम आसान करना चाह रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया
कि इट इज़ वेल सेटल्ड द राइट टू स्पीडी ट्रायल इन ऑल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज इनएलिएबल राइट अंडर आर्टिकल 21 and the right is applicable not only to actual proceeding in the court but includes within in sweep पुलिस इन्वेस्टिगेशंस एज वेल. अब सवाल उठता है कि ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है ये किस तरीके की होगी. इन्वेस्टिगेशन को भी तो फेयर होना होगा ना. यस, द आंसर इज कि एब्सोल्युटली इट इज नेसेसरी दैट द इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेयर. ठीक है. Fair investigation and fair trial are concomitant to the preservation of the fundamental right of the accused under Article 21 of the Constitution. This was specifically said in the case of Nirmal Singh Kahlon versus State of Punjab. Citation is AIR 2009 Supreme Court page number 984. अब इस छोटी सी लाइन के लिए आपको पूरा केस याद करने की ज़रूरत नहीं है. ये बात इम्प्लिसिट ही है ना. जब प्रोसीजर हैज़ टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल और आर्टिकल 21 से प्रोसीजरल लॉ पे नहीं अप्लाई करता है, वो सब्सटेंशियल लॉ को भी टेस्ट करेगा इस सेंस में. क्योंकि आप जानते हैं आर्टिकल 21 इज लिंक्ड टू आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14 एज वेल, है कि नहीं. तो गोल्डन ट्रायंगल को तो क्रॉस करना होगा. तो लॉ अगर जस्ट फेयर एंड रीजनेबल ही नहीं होगा देन इट विल नॉट पास द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 21. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं अरेस्ट पे. देखिए इस पे शॉर्ट से डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सीआरपीसी में भी जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेके सवाल ऐसे ऐसे आ जाते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस. अरेस्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कई डायरेक्शंस दिए थे रिगार्डिंग अरेस्ट एंड एम्फसाइज्ड टाइम एंड अगेन दैट द पावर टू अरेस्ट is there with the police officer, but the justification for the exercise of power is different matter. सेक्शन 41 ऑफ द CRPC देखेंगे तो वो मे शब्द का यूज़ करता है. पुलिस ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू अरेस्ट इन एवरी केस. इन मैनी केसेज ही हैज़ टू फर्स्ट इशू नोटिस. अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ने भी उस पोजीशन को रिकॉग्नाइज किया था, पर वो CRPC का डिस्कशन है, विल नॉट गो मच इनटू दैट. अब पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि स्पीडी ट्रायल पे आप कौन सा केस कोट करेंगे. स्पीडी ट्रायल पे दो केसेस हैं आपके मेन. पहला है आपका हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1360. ठीक है. इसको हुसैनारा खातून होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार 1 भी कहते हैं. ठीक है. पर मैं आपको पूरा साइटेशन दे रहा हूँ. 1979 में जो रिपोर्टेड है ये पहला केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट एम्फेसिस दिया था कि द राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस टेक्स विद इन इट्स ब्रॉड स्वीप द राइट टू बी ट्राइड स्पीडीली एंड दिस राइट can be traced directly to Article 21, although there it is not expressly mentioned, but it is implicit under Article 21. And the right interpretation of Article 21 is this, that the right to fair trial along with the speedy trial is implicit under Article 21. It is not just the speedy trial, it has to be fair as well. देखिए आपने एक लाइन सुनी होगी, that is justice delayed is justice denied. ये आधा ही है, इसके आगे भी कुछ है. पूरा कोट ये है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बट जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड. ठीक है. तो ये पूरी चीज़ का ध्यान रखना है. स्पीड के चक्कर में फेयर ट्रायल को एकदम बाहर नहीं फेंक देना है. ठीक है. इसका भी ध्यान रखना है आपको. सो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ नॉट दैट द स्पीडी ट्रायल इज एन एक्सक्यूज फॉर अ शैम ट्रायल. The trial has to be speedy, keeping in mind the quality. ठीक है. It has to be fair and just. तो हुसैनारा खातून के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बोल दिया था कि no procedure which does not ensure a reasonably quick trial can be regarded as reasonable, fair or just and would fall foul of Article 21. And there can be no doubt that the speedy trial, and by speedy trial we mean reasonably expeditious trial, is an integral and essential part of fundamental right to life and liberty under Article 21. इस केस में मेन चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी वो ये थी कि कई लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे बिहार की जेलों में, और द पीरियड ऑफ इनकासरेशन was much more than the maximum period for which they would have been sentenced. मतलब उनका इनकारसरेशन
was longer than the period for which they were under trial. मान लीजिए थेफ्ट को लेके है, ठीक है, सिंपल थेफ्ट, सिंपल थेफ्ट को लेके जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक का मैक्सिमम है, लोग 6-6 साल से जेल में हैं. वैसे ही थेफ्ट इन हाउस है, उसके लिए मैक्सिमम पीरियड फॉर पनिशमेंट कितना हो सकता है, जेल टर्म 7 साल. कुछ लोग 10 साल से जेल में हैं एज एन अंडर ट्रायल. इसको सुप्रीम कोर्ट ने वन ऑफ द मोस्ट ग्रीवियस वायलेशन माना है फंडामेंटल राइट का. और इस केस में क्या हेल्ड किया था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि फ्री लीगल सर्विसेज टू द पुअर एंड नीडी इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रीजनेबल फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर. एक गरीब आदमी अगर लॉयर नहीं ले सकता तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके पास लॉयर हो, स्टेट की ना. अदरवाइज एक अमीर है दूसरा गरीब है, तो अमीर आदमी तो लॉयर कर लेगा पर गरीब आदमी कर नहीं पाएगा, तो क्या होगा, क्या ये कहा जा सकता है द प्रोसीजर इज जस्ट? नो. सो हियर द सुप्रीम कोर्ट सेड that free legal services to the poor and needy is an essential element of reasonable, fair and just procedure. अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एम.एच. हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को कोर्ट किया. ठीक है, कौन से केस को कोर्ट किया? एम.एच. हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. पूरा नाम है माधव हयावंदराव हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. 17 अगस्त 1978 को डिसाइड हुआ था. तो जब भी फ्री लीगल एड की बात हो ना, एम.एच. हॉस्कॉट की बात ज़रूर करिएगा, क्योंकि एम.एच. हॉस्कॉट प्रीसीडेड हुसैन आरा खातून. एम.एच. हॉस्कॉट में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार बोला था कि द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विसेज टू अ प्रिजनर हु इज इंडिजेंट और अदरवाइज डिसेबल्ड फ्रॉम सिक्योरिंग लीगल असिस्टेंस वेयर द एंड्स ऑफ जस्टिस कॉल फॉर सच सर्विस. बोथ ऑफ दीज वुड बी द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 21. और जो बेस ऑफ द रीजनिंग था टू कम टू दिस कंक्लूजन वाज द मेनका गांधी जजमेंट. हाउएवर इन हुसैनारा खातून द आर्ग्यूमेंट वाज अ बिट डिफरेंट. एम.एच. हॉस्कॉट को तो कोर्ट ने कोर्ट किया ही था, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को और बट्रेस करने के लिए उन्होंने एक और बात बोली. इन हुसैनारा खातून Supreme Court also said that there is urgent necessity of introducing a dynamic and comprehensive legal services program, and that is not only a mandate of equal justice implicit in Article 14 and right to life and liberty conferred by Article 21, but also the compulsion of the constitutional directive embodied in Article 39A. So Supreme Court is actually using Article 39A, Article 14 and Article 21 together to create a new right. ये आप बहुत देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से अपना एक्टिविस्ट रोल डाउन किया है, it often reads a directive principle of state policy and finds an implicit right under the Part 3 of the Constitution. ठीक है, तो एम.एच. हॉस्कॉट याद रखिएगा फ्री लीगल एड को लेके. और जब हुसैनारा खातून की बात करें तो दोनों मेंशन करें कि स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल और आपका फ्री लीगल एड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हुसैनारा खातून में मेन जो लिंक बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, दैट वाज ऑफ आर्टिकल 39A, 21 एंड आर्टिकल 14, जिसके थ्रू उन्होंने बोला था द फ्री लीगल एड शुड बी प्रोवाइडेड टू द पुअर पर्सन्स वो ड्यू टू पॉवर्टी और इंडिजेंस और इनकम्युनिकेटो सिचुएशंस are unable to have a lawyer. स्पीडी ट्रायल पे जो नेक्स्ट सबसे बड़ा जजमेंट है वो A.R. अंतुले वर्सेस R.S. नायक है. मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये लिखना ज़रूरी होगा जब भी नोट आएगा आपका ऑन स्पीडी ट्रायल. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि लोकस क्लासिकस के साथ साथ आपको जो लेटेस्ट पोजीशन है वो भी मेंशन करनी पड़ती है. इनफैक्ट A.R. अंतुले वर्सेस R.S. नायक इज़ ऑल्सो अ लोकस क्लासिकस. इसके बिना कभी भी स्पीडी ट्रायल का आंसर आपका कंप्लीट नहीं हो सकता. अब एक डायरेक्शन याद रखिएगा A.R. अंतुले वर्सेस R.S. नायक का कि कोई भी फिक्स्ड पीरियड टाइम नहीं है, कोई आउटर टाइम लिमिट नहीं है कि जिसके एक्सपायर होते ही क्या कहते हैं ट्रायल क्वाश कर दिया जाएगा. ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस के बेसिस पे देखा जाएगा. एक जजमेंट था जहाँ पे एक माइनर बेंच ने, आई मीन 2 या 3 जजेस की बेंच थी, उन्होंने एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी थी जिसके बाहर अगर चार्जशीट फाइल होती है या ट्रायल नहीं कंडक्ट हो पाता है तो
जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो ट्रायल क्वाश कर देंगे, मैंडेट था सुप्रीम कोर्ट का। वो पर इंक्यूरियम जजमेंट था, ठीक है, दैट जजमेंट वाज पर इंक्यूरियम, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सप्रेसली बाद में ओवर रूल किया, ठीक है, बोला कि नहीं नहीं नहीं, दैट जजमेंट इज नॉट द करेक्ट पोजीशन, द करेक्ट पोजीशन इज दैट ऑफ ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक, ठीक है। तो आप बस दो चीज़ों का मेन ध्यान रखिएगा, हुसैनारा खातून के केस का और ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक, दैट वुड सफाइस ऑन अ प्रिलिमिनरी लेवल और मेंस लेवल पे भी। अब नेक्स्ट आते हैं राइट ऑफ अपील पे। सुप्रीम कोर्ट ने एम एच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ही कहा था कि एज अ पार्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ फेयर प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट वेरी कैटेगोरिकली मेंशन्ड that there should be at least one right of appeal from sessions court to high court. It is essential where criminal conviction is brought about with a long loss of liberty. सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देयर शुड बी एटलीस्ट वन राइट टू अपील। अब लीगल एड को लेके एक बड़ी स्पेसिफिक और एक और बात है, ये बात भी अर्लियर जजमेंट्स में भी रेफर की गई हैं, पर इसके लिए मैं चाहता हूँ आप एक दूसरा केस लिखें, दैट इज़ खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। साइटेशन इज AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 928। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर रेफरिंग टू इट्स अर्लियर जजमेंट लाइक हुसैनारा खातून यही बात मेंशन की कि जो कोर्ट है ना वो अपनी नॉट कोर्ट, द स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ना, दे कैन नॉट अवॉइड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पुअर अक्यूज्ड बाय प्लीडिंग फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इनएबिलिटी, ठीक है। अक्सर स्टेट गवर्नमेंट ये बहाना लेती है कि उनके पास पैसा नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो आपको फुलफिल करना होगा, चाहे पैसा आप कहीं से भी लाइए पर आपको लाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली ये एम्फसाइज किया कि द ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द पुअर अराइजेज नॉट ओनली व्हेन द ट्रायल बिगिंस बट ऑल्सो व्हेन ही इज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट. It is at this stage that the accused gets his first opportunity to apply for bail and obtain his release, as also to resist remand to police or jail custody, and so the accused needs a competent legal advice and representation at that stage. Accused can also claim free legal aid after he has been sentenced by the court, but is entitled to appeal against the verdict. कोर्ट ने साथ में ये भी emphasize किया that it is the legal obligation of the magistrate or the judge whom the accused is produced, before whom the accused is produced, to inform him that if he is unable to engage a lawyer on the account of poverty or indigence, he is entitled to obtain free legal services at the cost of the state. Supreme Court took the view that the right to free legal services would be illusory for an indigent accused unless the trial judge informs him of such right. Since more than 70% of the people in rural areas are illiterate, and even more than that percentage of people are unaware of their rights conferred on them by law, it is essential to promote legal literacy as a part of the program of legal aid. It would be a mockery of legal aid if it were to be left to the poor, ignorant and illiterate accused to ask for free legal services. Legal aid would become a paper promise and it would fail in its purpose. The trial judge is therefore obligated to inform the accused that if he is unable to engage a lawyer on the account of poverty or indigence, he is entitled to obtain free legal services at the cost of the state. अब सवाल उठता है कि मान लीजिए नहीं दी तो क्या होगा? What if free legal services are not given? Accused है कोई पर्सन, कन्विक्ट हो गया। ये मैंने डिस्कशन एक बार CRPC में किया था जब मैं सेक्शन 304 ऑफ CRPC डिस्कस कर रहा था। एक्चुअली इसका आंसर एक दूसरे केस से मिलता है। उस केस का नाम है सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 991। इसमें द अपेलेंट एंड 4 अदर पर्सन्स वर चार्ज्ड विद एन ऑफेंस अंडर IPC, ठीक है। IPC के कुछ ऑफेंसेस उन पे लगे थे। आई एम नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। अपेलेंट्स वर वेरी पुअर, अब वो गरीब थे, वो लॉयर एंगेज नहीं कर पाए टू रिप्रेजेंट देम एट द ट्रायल। दे वर कन्विक्टेड बाय द सेशंस कोर्ट, ठीक है। व्हेन द अपील वेंट टू द हाई कोर्ट, दे प्लीडेड दैट दे हैव नॉट बीन गिवन द असिस्टेंस ऑफ अ लॉयर, सो दे मस्ट बी असिस्टेड एंड द कन्विक्शन शुड बी सेट असाइड और रीट्रायल का एक ऑर्डर मिल जाए। हाई कोर्ट डिसमिस द अपील ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव मेड नो रिक्वेस्ट फॉर लीगल एड
and that in the fact and circumstances of the case it should be said that they themselves have not claimed that right. Basically the high court said कि उनको lawyer नहीं मिला, that is not a ground for vitiation of trial. ठीक है, क्योंकि सुखदास और appellants का कहना था कि the trial has vitiated. अब ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट. अब जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि ये जो फंडामेंटल राइट विच वाज लॉफुली डिनाइड टू एन अक्यूज पर्सन, और जब ये राइट डिनाई हो गया उनको, तो क्या इस वायलेशन का इफेक्ट क्या होगा. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या किया, इट रीइटरेटेड द खत्री रूलिंग. ठीक है, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को रीइटरेट कर दिया उन्होंने, और फिर वही बात बोली कि लिटरेट पीपल को तो पता नहीं है उनके राइट्स क्या है अंडर लॉ में, एंड हेयर वी एक्सपेक्ट पुअर एंड इग्नोरेंट पीपल टू नो अबाउट ऑल ऑफ देयर राइट्स एंड आस्क फॉर फ्री लीगल एड एंड मूव एन एप्लीकेशन. उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लीगल एड वुड बी एन आइडल फॉर्मेलिटी if it was to depend upon a specific application by such poor and ignorant person for such legal assistance. After reiterating Khatri versus State of Bihar, Supreme Court very categorically ruled in Sukhdas versus Union Territory of Arunachal Pradesh that in a case where on conviction a sentence of imprisonment would be imposed and social justice requires that the accused would be given legal aid, the magistrate is under a legal obligation to inform the accused that if he is unable to engage a lawyer due to poverty or indigence, he is entitled to obtain free legal services at the cost of the state. In this case, the conviction of the appellant was quashed by the Supreme Court because the accused remained unrepresented by a lawyer, and so the trial became vitiated on the account of fatal constitutional infirmity. On this point, Supreme Court said that the trial judge is under an obligation to inform the accused about his right to get legal aid, free legal aid. ठीक है, and if that fundamental right of the accused to get free legal aid is violated, the trial would be vitiated on the account of fatal constitutional infirmity, which means that his conviction must be set aside in all circumstances. That is the effect of not providing legal aid. अब इसमें थोड़े नुआंसेस हैं. ठीक है, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट. कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन दिस इज़ प्रॉपरली अ डिस्कशन ऑफ CRPC. उसमें सेक्शन 304 को लेके होता है. तो ये जो सुखदास का जो ऑब्जर्वेशन है, ये सेक्शन 304 ऑफ द CRPC के लिए, ठीक है, मतलब सेशंस जज के कॉन्टेक्स्ट के लिए, कि अगर कोई भी ऐसा ट्रायल है जो सेशंस ट्रायल, वो जो सेशंस कोर्ट ट्राई कर रहा है, इट्स अ सेशंस ट्रायल, देन इन दैट सिचुएशन ओनली द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुखदास वुड अप्लाई. आप इसका एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं कि ये मैजिस्ट्रेट पे भी डायरेक्शन है. दैट इज़ ट्रू, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन कन्विक्शन क्वाश होने वाला जो इफेक्ट है, ट्रायल विशिएट जो होने वाला इफेक्ट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, it has to be understood in the light of the background in which the judgment of Sukhdas was given. ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड सेक्शन 304 है बेसिकली. ठीक है, तो बेसिकली इस बेसिस पे आप अंडरस्टैंड करिएगा कि इसको ओवर सिंप्लीफाई मत कर दीजिएगा. ठीक है, अच्छा रेमेडी क्या है अगर अक्यूज्ड को वो नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं, फ्री लीगल एड नहीं मिल रहा, तो वो कहाँ अप्लाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करेगा या हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया था रंजन त्रिवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, AIR 1983, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 624. आपको केस लॉ की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस की ज़रूरत है. अगर आपने CRPC पढ़ी है, CRPC ने स्टैट्यूटरी रेमेडी दे रखी है कि लेट अस सपोज अ पर्सन इज बीइंग ट्राइड फॉर मर्डर एंड ही वांट्स लीगल एड, फ्री लीगल एड. ठीक है, so the remedy is not by the way of writ petition, the remedy is by way of moving an application under section 304 of CRPC before the sessions court. ठीक है, so be very particular about that. Now let me tell you a very interesting thing about रंजन त्रिवेदी, इस केस के बारे में. मैं आपको एक बात बता दूं, ये केस ज़्यादातर कोई पूछता नहीं है, पर ये केस है बहुत इंटरेस्टिंग. अगर कभी भी लीगल एड पे लिखने की बात आ जाए ना, तो ज़रूर लिखिएगा. ठीक है, आपका आंसर बहुत इन्हांस हो जाएगा. इस केस में एक और बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो रूल फ्रेम किए थे, उसके हिसाब से जो लॉयर की डेली फ़ी थी वो 24 रुपये थी. ठीक है, फॉर द लॉयर अपेयरिंग एज एमिकस क्यूराई.
Ranjan Trivedi argued that for such a paltry sum, no lawyer of a standing would find it possible to appear for him. कितने छोटे अमाउंट के लिए मेरे लिए कौन अपेयर करेगा, मतलब बेसिकली बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट था. उन्होंने कहा कि द प्रोसिक्यूशन तो सीनियर काउंसिल कंडक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि एज अ मैटर ऑफ प्रोसेसुअल फेयर प्ले द स्टेट शुड प्रोवाइड हिम अ लॉयर on the basis of equal opportunity. Supreme Court agreed with this contention, and the Supreme Court enhanced the fee payable to rupees 500 per day for the senior counsel and rupees 350 per day for a junior counsel for representing Ranjan Trivedi. Supreme Court ने फिर सारी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया to make provision for grant of free legal aid and free services to the poor and accused person, and said the only qualification would be that the offence charged against that accused is such that on conviction it would result in a sentence of imprisonment, and it is of such a nature that the circumstances of the case and the needs of social justice required that he should be given free legal representation. However, Supreme Court put a rider by saying that there may be cases involving offences such as economic offences or offences against law prohibiting prostitution or child abuse and the like, where social justice may require that free legal services need not be provided by the state. अब सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑब्वियसली करेक्ट, बट इट इज़ नॉट करेक्ट ऑल द टाइम. मेरे हिसाब से देर इज़ नो रीज़न फॉर विद होल्डिंग लीगल एड इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस और इन एनी अदर लॉ. अगर अक्यूज्ड पुअर है, इंडिजेंट है और सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो लॉयर नहीं अफोर्ड कर सकता, इट मेक्स नो सेंस टू गिव हिम प्रोटेक्शन इन वन लॉ एंड डिनाई हिम प्रोटेक्शन इन अदर सेट ऑफ लॉज. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी लीगल एड शुड बी गिवन इन ऑल द केसेस प्रोवाइडेड द अक्यूज पर्सन इज पुअर. अब उसका 1000 करोड़ों का एम्पायर है तो भाई उसके लिए तो बड़े बड़े लॉयर अपीयर कर लेंगे, वो तो 304 की एप्लीकेशन तो कभी मूव ही नहीं करने वाला. ज़रा हैंड कफिंग की बात कर लेते हैं. हैंड कफिंग को लेके सवाल आएगा, ठीक है, कि किस जजमेंट से आया कि इट इज़ प्राइमा फेसाई इनह्यूमन अनरीजनेबल ओवर हार्श. भाई इसका केस है प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1950, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1535. ठीक है, in this case Supreme Court declared that handcuffing is prima facie inhuman, therefore unreasonable and is over harsh and at first flush arbitrary. अब लैंग्वेज से ही समझ सकते हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लिखा है. Accordingly, the court has held that the rule requiring every under trial prisoner of a non-bailable offence punishable with more than 3 years prison term to be routinely handcuffed during transit from prison to court violates Article 14, 19 and 21. Supreme Court said that the nature of the accusation is not the criteria. The clear and the present danger of escape, breaking out of the police control is the determinant. The only circumstance validating the handcuffing is that there is no other reasonable way of preventing his escape in the given circumstances, and for this there must be clear material, not a glib assumption. Record of reasons and judicial oversight and summary hearing and the direction by the trial court where the victim is produced are all necessary materials that would be judicially scrutinized. ठीक है. Now, even in cases where in extreme circumstances handcuffs have to be put on the prisoners, the escorting authority must record contemporaneously the reasons for doing so. ठीक है, उसी वक्त रिकॉर्ड करेगी किन कारणों से उन्हें हैंडकफ करना पड़ रहा है. These reasons must get the approval of the presiding judge. Very important. इन reasons जो भी हैं, they must get the approval of presiding judge. Otherwise, there is no control over the possible arbitrariness in applying the handcuff and fetters. Supreme Court then emphasized that it is implicit in Article 21, which insists upon the fairness, reasonableness and justice in the very procedure which authorizes the stringent deprivation of life and liberty. Justice Krishna Iyer continued on Article 21 and said, the sanctuary of human values prescribes fair procedure and forbids barbarities, punitive or processual. While conceding that the prevention of escape of a prisoner was in public interest and reasonable, fair and just,
Justice Krishna Iyer asserted that insurance against escape does not compulsorily require handcuffing. साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ रिच क्रिमिनल, a rich under trial accused or a poor under trial accused. ठीक है, because after the promulgation of the constitution the difference between the classes of rich and poor is practically obliterated. और ये आप इस बेसिस पे फेटर्स नहीं लगा सकते किसी पुअर अंडर ट्रायल पे कि वो पुअर है इसलिए उसके चांसेस बहुत हैं भागने के, ठीक है, वरना ये आर्टिकल 14, 19 एंड 21 तीनों का वॉयलेशन हो जाएगा. इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूड विद इन द वेरी जजमेंट प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी hereby declare that the rule regarding prisoner in transit between the prison house and the courthouse is freedom from handcuffs, and the exception under the conditions of judicial supervision we have indicated earlier will be restraints with iron to be justified before or after. We mandate that the judicial officer before whom the prisoner is produced to interrogate the prisoner as a rule whether he has been subjected to the handcuff or other iron treatment, and if he has been, the official concerned shall be asked to explain the action forthwith in the light of this judgment. वैसे मैं सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ. जस्टिस कृष्णा अय्यर हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग टू मच. बेसिकली इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ट्रायल जज को ये डिस्क्रेशन दे दिया था और ट्रायल जज को ये मैंडेट दे दिया था कि जहाँ जहाँ हैंड कफिंग या फेटर्स लगाए जाएं वहाँ पे रीजंस होने चाहिए. ये नहीं कि ज़बरदस्ती बाय रूल उनको आपने फेटर्स पे डाल दिया या कोई आर्बिट्ररी डिस्क्रेशन के चलते आपने उन पे हैंड कफिंग या फेटर्स लगा दिए, ठीक है. तो ऐसे में इट इज़ द ट्रायल जज वो विल सी कि भाई किन कारणों की वजह से उसके ऊपर हैंडकफ लगाए गए, ठीक है. प्रिसाइडिंग जज वुड बी द मेन अथॉरिटी. और अगर ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रीजंस तो वो क्या करेगा, ही विल आस्क द फेटर्स एंड द हैंडकफिंग टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली, ठीक है. और कभी कभी कंटेम्प्ट एक्शन भी ले सकता है इफ यू सो वांट्स. साथ ही साथ इन ऑर्डर टू कम टू द कंक्लूजन दैट वेदर द हैंडकफिंग वाज नेसेसरी और नॉट, in order to prevent the escape of the prisoner, there must be a clear material record of reasons, and the judiciary, the presiding judge, must scrutinize all the record and the material present and then apply its mind and see whether there was sufficient cause for handcuffing the accused person or not. तो याद रखिएगा अंडर ट्रायल की हैंडकफिंग पे आपका प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, तो उसको शॉर्ट में आप आंसर कर दीजिएगा. यू डोंट नीड टू एलैबोरेट इट टू मच. अब नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं. ये है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. 20 दिसंबर 1979 को डिसाइड हुआ और AIR 1980 पेज नंबर 1579 में रिपोर्ट हुआ, ठीक है. अब सुनील बत्रा के दो केसेस हैं, ठीक है. एक ये जो 1979 वाला है 20 दिसंबर 1979 को जो एक डिसाइड हुआ था, और एक इससे पहले का है जो 30 अगस्त 1978 को डिसाइड हुआ था. मैं पहले लैटर वाला डील कर लेता हूँ क्योंकि ये लैटर वाले केस में ही आपका फॉर्मर केस भी डील हो जाएगा. तो इसको आप सुनील बत्रा 2 भी बुला सकते हैं. तो ये सुनील बत्रा 2 में जो केस हुआ था वो ये था कि द पिटिशनर वाज अ कॉन्विक्ट अंडर डेथ सेंटेंस, and he wrote a letter to one of the judges of the Supreme Court alleging that the torture was being practiced upon another prisoner by a jail warder, ठीक है, to extract money from the victim through his visiting relations. The letter was converted into a habeas corpus proceeding and the court issued notice to the state and the concerned officials, and Supreme Court also appointed the amicus curiae. Now, amicus curiae, after visiting the jail and examining the witness, reported that the prisoner sustained serious anal injury because a rod was driven into that aperture to inflict inhuman torture, and that as the bleeding had not stopped, he was removed to the jail hospital and later to the Irvin hospital. It was also reported that the prisoner's explanation for anal rupture was unfulfilled demand of the warden for money,
and that attempt was made by the departmental officer to hush up the crime by overawing the prisoner and the jail doctor and offering a story that injury was either due to the fall of self-infliction or due to piles. मतलब ये जो अंडर ट्रायल था, सॉरी अंडर ट्रायल नहीं था, प्रिजनर था, ये जो प्रिजनर था ही वॉज बीइंग टॉर्चर्ड, तो इसका जो फेलो प्रिजनर था ही रोट अ लेटर, ठीक है, टू द सुप्रीम कोर्ट. इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इट बिहोव्स द कोर्ट टू इंसिस्ट दैट इन द आई ऑफ लॉ द प्रिजनर्स आर पर्सन्स एंड नॉट एनिमल्स, and to punish the divine guardians of the prison system where they go berserk and defile the dignity of the human inmate. Prison houses are a part of Indian earth and Indian constitution, cannot be held at bay by jail officials dressed in a little brief authority. When part 3 is invoked by a convict, when a prisoner is traumatized, the constitution suffers a shock. आप समझ सकते हैं ये पैरा किसने लिखा है, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ही लिखा है. Supreme Court continued and said that where the rights of a prisoner either under the constitution or under any other law are violated, the writ power of the court can and should run to his rescue. There is a warrant for this vigil. The court process casts the convict into the prison system, and the deprivation of his freedom is not a blind penitentiary affliction but a belated institutionalization geared to a social good. The court has a continuing responsibility to ensure that the constitutional purpose of the deprivation is not defeated by the prison authorities. A prisoner wears the armor of basic freedom even behind bars, and on breach thereof by lawless officials, the law will respond to his distress signals through writ aid. The Indian human has a constant companion, the court armed with the constitution. Then Supreme Court quoted Menka Gandhi and M.H. Hoscott. Further, the Supreme Court said that law in the books and in the courts is no help unless it reaches the prisoner in an understandable language and available form. There is therefore need to get a ready prisoner's handbook in the regional language and make them freely available to inmates. To know the law is the first step to be free from fear of unlaw. The most important right of a prisoner is to integrity of his physical person and mental personality. No prisoner can be personally subjected to the deprivations not necessitated by the fact of incarceration and the sentence of the court. Supreme Court said that pushing the prisoner into a solitary cell, denial of necessary amenity, and more dreadful sometimes the transfer to a distant prison where the visits of society or friends or relatives may be snapped, may be punitive in effect. Every such affliction or abridgment is an infraction of liberty or life in its wider sense and cannot be sustained under Article 21. There must be a corrective legal procedure, fair and reasonable and effective. मतलब एक करेक्टिव लीगल प्रोसीजर होना चाहिए जिससे प्रिजनर सुधरे. ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रिजनर के ऊपर हर तरीके के टॉर्चर करिए. ठीक. सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता है और बोलता है कि such infraction will be arbitrary under Article 14 if it is dependent on the unguided discretion, unreasonable under Article 19 if it is irremediable and unappealable, and unfair under Article 21 if it violates the natural justice. Basically Supreme Court is saying कि Article 14 का violation तब होगा जब unguided discretion है, आर्टिकल 19 का वॉयलेशन तब होगा व्हेन द मैटर इज इररेमिडिएबल, अनअपीलेबल एंड अनफेयर, और आर्टिकल 21 का वॉयलेशन तब होगा जब नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन होता है. ठीक है, इसको हम नटशेल में समराइज कर सकते हैं. और द प्रॉब्लम इज दैट जस्टिस कृष्णा हियर हैज़ अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन अ फ्लोरल लैंग्वेज एंड समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट to make others understand that what he actually means. ये जो सुनील बत्रा 2 है, ये सिर्फ नेम सेक के लिए हम लोग सुनील बत्रा 2 बोल रहे हैं. केस का नाम ऐसा नहीं है. केस का नाम तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, पर 2 केसेस हैं इस पे. ठीक है, अभी दूसरा केस भी डिस्कस करूंगा. ये जो सेकंड वाला है ना, अब यहाँ पे एक फेलो प्रिजनर ने, जो पटिशनर था, उसने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट के जज को. ठीक है, तो ये सवाल उठा था कि यार
ये जो लेटर है ये कैसे रिट पिटिशन हो सकता है? लेटर तो रिट पिटिशन हो ही नहीं सकता भाई। आप प्रॉपर प्लीडिंग के फॉर्मेट में फाइल करिए, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट की फीस होगी, है ना, उसी के हिसाब से चलना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया सिंस द लेटर इज एट स्टेक द लेटर वुड बी ट्रीटेड एज अ पिटिशन फॉर द रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस पे हेविली रिलाई किया in order to come to this conclusion that if they have to bring the rule of law in the prison system, then they have to keep the rules of pleading in these matters malleable. ठीक है, they don't have to be rigid like United Kingdom. उनको रिट की प्रोसीडिंग्स को काफ़ी ओपन रखना होगा। इस जजमेंट की वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटिशंस की भरमार हो गई। ठीक है, अगर आप कभी भी सोचे ना लेटर पिटिशंस कहाँ से आ रहे हैं, तो इट वाज ड्यू टू दिस जजमेंट कि लेटर पिटिशंस को रिकॉग्निशन मिला था कि आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज को लेटर भी लिख दिया, वो लेटर को रिट पिटिशन ट्रीट कर सकते हैं। दे आर वेरी पावरफुल इन दैट रिगार्ड। इसको लीगली क्या कहते हैं? इसको लीगली कहते हैं एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। इट इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट बाय विच द constitutional courts can convert any letter which has been addressed to it by any person into a writ and hear the matter. ये इसी जजमेंट की वजह से हुआ है मेनली। ठीक है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि प्रिजनर ग्रीवेंसेस पे ये मेन केसेस हैं। जैसे एक और केस भी मैं चाहूँ तो आपको बता दूँ, वो है चार्ल्स शोभराज वर्सेस सुपरिटेंडेंट जेल तिहाड़, AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1514। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वही कैटेगरिकली बोला था कि अंडर आर्टिकल 32 इट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन टू कंसिडर द प्रिजनर्स ग्रीवेंसेस, और अगर उनको कोई इल ट्रीटमेंट दे रहा है देन दे कैन इंटरवीन विद द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी राइट्स आर ट्रांसग्रेस्ड ऑफ द प्रिजनर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि merely because a person is a prisoner doesn't mean he has lost all the fundamental rights. इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ह्यूमन डिग्निटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार हो सकता है। वो प्रिजनर है, नो डाउट ही हैज़ लॉस्ट द राइट ऑफ फ्री मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19। ठीक है, वो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी नहीं क्लेम कर सकता। कई फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आर्टिकल 14 सस्पेंड हो जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आर्टिकल 21 सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 21 तब भी ऑपरेटिव रहता है। तो वहाँ पे लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, नॉट मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। तो अगर प्रिजनर के साथ क्रूअल या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट होता है, उसके राइट्स का वायलेशन होता है। अब आपको मैंने पढ़ के ही बता दिया कि सुनील बत्रा में क्या हुआ था। नाउ यू इमेजिन द सिचुएशन ऑफ दैट पुअर पर्सन। ठीक है, आप सोचिए कि जिस प्रिजनर ने वो लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, ही वॉज अ डेथ रो कॉन्विक्ट, मतलब ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, ही वॉज वेटिंग फॉर हिज डेथ, एंड ही वॉच्ड सच a violent transgression of a right of his fellow prisoner that he was forced to write to the Supreme Court by his own conscience. तो आप सोच सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव इन इट्स फ्री हैंड क्या क्या करता है। Had the Supreme Court not come to the rescue of that poor man, that man would have been surely dead. ठीक है, and you should thank Supreme Court for the enhancement of these rights. अदरवाइज इंडिया पुलिस स्टेट बड़ी जल्दी बन जाता। अब सुनील बत्रा 1 पे आ जाते हैं। ये है आपका सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1675। ठीक है, पहला वाला है। इट वाज डिसाइडेड ऑन 30 अगस्त 1978। अब इस केस में द पिटिशनर वाज सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन द चार्जेस ऑफ मर्डर एंड रॉबरी and was being kept in solitary confinement pending his appeal before the High Court. He filed a writ petition in the Supreme Court under Article 32. Court emphasized in this judgment that Article 21 means that the law must be right, just and fair, not arbitrary, fanciful or oppressive. Otherwise, it would be no procedure at all and the requirements of Article 21 would not be satisfied. If it is arbitrary, it would be violative of Article 14.
Supreme Court stated that resort to the oppressive measures to curb political beliefs. Pris- Prisoner concerned in this case was a Naxalite, and therefore he was being put in a quarantine and was being put to inhuman treatment. Supreme Court said that that could not be permitted. Supreme Court maintained that the conviction of a person for a crime does not reduce him to a non-person vulnerable to a major punishment imposed by jail authorities without observance of due procedural safeguards. The under trials are in custody but not undergoing punitive imprisonment. Supreme Court frowned upon the practice of keeping prisoners condemned to death in solitary confinement. Apart from Article 21, Supreme Court also held solitary confinement to be invalid under Article 20, subclause 2. Supreme Court said that the person under death is held in a jail custody so that he is available for execution to the death sentence when the time comes. No punitive detention can be imposed on him by the jail authorities except for the prison offences. He is not to be detained in solitary confinement as it will amount to imposing a punishment for the same offence more than once, which would be violative of Article 20, Clause 2. It is only when the person is under executable sentence of death, when the sentence of death has become final and conclusive, and which cannot be avoided by any judicial or constitutional procedure, that he may be kept in solitary confinement. सिर्फ उसी सिचुएशन में जब कोई जुडिशियल रेमेडी नहीं बची है या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं बची है तभी उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख सकते हैं. अदरवाइज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज वायलेटिव ऑफ बोथ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 and article 21. Supreme Court then ruled that the bar fetters make serious inroad on the limited personal liberty which the prisoner is left with. Such a punishment can be imposed only to secure the safe custody of the prisoner, taking into the consideration the character, antecedents, and the propensities of the prisoner. These are the only relevant consideration to determine whether there was a need to put such fetters on the prisoner. The determination of the necessity to put a prisoner in bar fetters has to be made after the application of mind to the peculiar and special characteristics of each individual prisoner. The nature and length of sentence or the magnitude of the crime committed by the prisoner are not relevant for the purpose of determining this question. Supreme Court then continued and said that we cannot be oblivious of the fact that the treatment of a human being which offends human dignity, imposes avoidable torture, and reduces the man to the level of a beast would certainly be arbitrary and can be questioned under Article 14. Supreme Court said, Justice Krishna Iyer said that I hold that the bar fetters are barbarity, generally like whipping, must vanish. We hold that the solitary confinement, cellular segregation, and marginally modified editions of the same process are inhuman and irrational. तो इसी के साथ हमारा वो ख़त्म हो जाता है, क्या कहते हैं, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1. ठीक है, ये पहला वाला केस था. तो सेकंड वन हमने सबसे पहले डील किया, फर्स्ट वन उसके बाद डील कर लिया. ध्यान रखिएगा, जो सेकंड वाला सुनील बत्रा का केस था दैट वाज ऑन द टॉर्चर दैट वाज इन्फ्लिक्टेड ऑन अ प्रिजन इनमेट. ठीक है, और जो फर्स्ट वाला सुनील बत्रा का जजमेंट था दैट डेल्ट विद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज प्राइमा फेसाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बार फेटर्स शुड वैनिश लाइक फ्लेइंग. ठीक है, इस तरीके से आपका विपिंग और फ्लेइंग वैनिश हो गया है, उस तरीके से बार फेटर्स को भी वैनिश हो जाना चाहिए. दैट इज़ अ क्रूअल एंड इनह्यूमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट. साथ ही साथ जो मेन पार्ट ऑफ जजमेंट था दैट डेल्ट विद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. ठीक है, ये पहले सुनील बत्रा वाले केस की बात कर रहा हूँ. देखिए, ये सब इतना एक्सप्लेनेशन इसीलिए देना पड़ रहा है ना, क्योंकि हुसैन खातून के 3 केस हैं, सुनील बत्रा के 2 केसेस हैं, ऐसे बहुत आते हैं इसमें. ठीक है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. और कभी आप पढ़ेंगे तो लिखा होता है 1 2 3, पर जब आप एक्चुअल का केस पढ़ेंगे तो केस पे कभी भी नंबर नहीं मेंशन होता 1 2 3. ठीक है, इट इज़ एक्चुअली द सेकंड इन सीक्वेंस. तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था कि सेकंड इन सीक्वेंस किससे डील कर रहा है सुनील बत्रा का जो सेकंड केस है, दैट इज़ डीलिंग विद द प्रिजन टॉर्चर. ठीक है, द टॉर्चर ऑफ द प्रिजन इनमेट्स बाय द प्रिजन अथॉरिटीज़. इस पे क्लियर रहिएगा, इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है. और जो फर्स्ट केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, वो किससे डील करता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से. ठीक है,
वो डील करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से। हैंड कफिंग से कौन सा जजमेंट डील करता है? प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस बात पे क्लियर रहिएगा, ठीक है? इस बात पे इतना सा क्लियर रहेंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपको उसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है। तो ये तो हो गया हमारा। साथ ही साथ आपको एक और बात बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर कुछ केसेस में देखा है कि देयर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वुमेन इन प्रिजन विदाउट दोज वुमेन बीइंग अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम, and the women were kept in prison merely because they happened to be the victims of any particular offense or they were required for giving some evidence। उस कस्टडी को स्टेट जस्टिफाई करता था कि ये प्रोटेक्टिव कस्टडी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिसको आप प्रोटेक्टिव कस्टडी कह रहे हैं, दिस इज रियली इन ट्रुथ नथिंग बट इम्प्रिजनमेंट विच वायलेट्स आर्टिकल 21। And Supreme Court then directed the government to set up the welfare and rescue homes to take care of destitute women and children। ये सुप्रीम कोर्ट ने हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला। अब ये थर्ड हुसैनारा खातून केस है, ठीक है? आपको इस पर बस ऐसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत एक्सप्रेसली नहीं, एक सुपरफिशियल लेवल पे, कि ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आपको कोई बोले कि द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वुमेन इन प्रिजन्स without women having committed any offense and justifying it in the name of protective custody, whether it is allowable or not, आप सीधे बोलोगे this is not protective custody but it is imprisonment, and Supreme Court has already frowned upon it। Such an acts by the state cannot be allowed to stand। लगे हाथ एक शॉर्ट सा डिस्कशन डेथ सेंटेंस पे भी कर लेते हैं। अब जो डेथ सेंटेंसेस हैं उनकी वैलिडिटी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की है कि दैट दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड आर्टिकल 21। सबसे पहले उसकी जो वैलिडिटी टेस्ट की गई थी वो जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में की गई थी। EIR 1973, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 947। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नेक्स्ट केस आया था वो था बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वहाँ में भी सुप्रीम कोर्ट बाय मेजॉरिटी अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी एंड सेड दैट सेक्शन 302 ऑफ IPC डज नॉट वायलेट आर्टिकल 19, 14 और 21। अब उसमें पता है आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर टेस्ट आया था, ठीक है? उसमें नहीं जाना है, वो मेन IPC का डिस्कशन है कि व्हाट इज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। उसके बाद नेक्स्ट केस जो सीक्वेंस में आया वो था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है? EIR 1983, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 947। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर एम्फसाइज किया कि डेथ पेनल्टी नीड नॉट बी इन्फ्लिक्टेड एक्सेप्ट इन ग्रेवेस्ट ऑफ केसेस ऑफ एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी एंड द लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड द डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है? कई ब्रॉड गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में रखी थी। उस गाइडलाइन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और 14 के हिसाब से क्या डेथ पेनल्टी वैलिड है, इसी डिस्कशन की बात कर रहे हैं। अब इस पे जो एक डायरेक्टली केस है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी, ठीक है? AIR 1986, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 467। इसमें क्या हुआ था, राजस्थान हाई कोर्ट गेव अ डायरेक्शन टू हैंग लक्ष्मा देवी ऑन द स्ट्रीट इटसेल्फ, पब्लिक हैंगिंग का ऑर्डर दिया था, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया इस केस में कि पब्लिक हैंगिंग वुड बी बारबैरिक प्रैक्टिस एंड इट कॉन्ट्रावीन्स आर्टिकल 21। It is a revolting practice harking back to earlier centuries, and Supreme Court made it crystal clear that a barbaric crime attracting death sentence does not have to be visited with a barbaric penalty such as public hanging, and if any jail manual of the state prescribes public hanging, then the Supreme Court would declare such provision as void, unconstitutional and violative of Article 21। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, उसका क्या सीन है? देखिए, इस पे अर्लियर बहुत केसेस थे, अब इसकी भी हिस्ट्री पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आ जाइए त्रिवेणी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात पे, वेयर द सुप्रीम कोर्ट reaffirmed the constitutional validity of that sentence and sought to resolve the conflicting judicial views that were expressed in the judgment of Sher Singh versus State of Punjab and Vatheeswaran versus State of Tamil Nadu।
सुप्रीम कोर्ट सेड, देखिए क्या हुआ था, वथीश्वरन में बोल दिया गया था कि 2 साल से ज़्यादा का अगर डिले होता है देन दैट इज़ अ ग्राउंड टू क्वाश दैट सेंटेंस। ठीक है, बैकग्राउंड बता देता हूँ शॉर्ट में। वथीश्वरन में बोल दिया गया था कि 2 साल से ज़्यादा का अगर डिले होता है देन दैट इज़ अ ग्राउंड टू क्वाश द डेथ सेंटेंस। और जो शेर सिंह का जो जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो 2 साल का पीरियड है दैट कैन नॉट बी लेड डाउन एज एन एब्सोल्यूट रूल कि वो केस ऑफ डिले है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं इन मैटर्स और इन सवालों से डील किया त्रिवेणी बैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। साइटेशन इज AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट पे नंबर 1335 दैट डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंप्यूटिंग द डिले पीरियड, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंडेम्ड प्रिजनर and what are the circumstances which could be considered along with the time that has been taken before the sentence is executed. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली मेंशन कर दिया कि द डिले दैट विच वुड बी कंसिडर्ड in questioning of the commutation of sentence into one of life imprisonment could only be from the date of judgment by the apex court. ठीक है, मतलब when the judicial process comes to an end, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया वहाँ से डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूट करने में कितना डिले है वहाँ से कंप्यूट होगा. While considering the question of delay after the final verdict is pronounced, the time spent on the petition for review and repeated mercy petition at the instance of convicted person himself, however, shall not be considered. The only delay which would be material for consideration will be the delay in disposal of mercy petition or delay occurring at the instance of executive. It is expected that the mercy petitions received under Article 72 or 161 are disposed expeditiously. Then Supreme Court said that inordinate delay in executing the death sentence coupled with subsequent circumstances could be held to be sufficient to come to a conclusion that execution of death sentence will not be just and proper. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि undue long delay in execution of sentence of death will entitle the condemned person to approach the court under Article 32, but Supreme Court will only examine the nature of the delay caused and the circumstances ensued after the sentence was finally confirmed by the judicial process, and will have no jurisdiction to reopen the conclusion reached by the court while finally maintaining the sentence of death. Supreme Court, however, may consider the question of inordinate delay in the light of all circumstances of the case to decide whether the execution of sentence should be carried out or should be altered into imprisonment for life. No fixed period for delay could be held to make the sentence of death inexecutable, and to this extent, Vatheswaran case cannot be said to lay down the correct law, and to that extent stands overruled. तो आपको आंसर मिल गया कि ये कोई 2 साल का जो पीरियड वथीश्वरन में ले डाउन किया गया था दैट इज़ नॉट अ गुड लॉ. सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया रखा है जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर डिसाइड करेगा कि वेदर एन इनऑर्डिनेट डिले है या नहीं. ठीक है, दैट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड एंड द फाइनल से हैज़ बीन गिवन टू द जुडिशरी. अगर जुडिशरी को लगता है कि देयर हैज़ बीन एन इनऑर्डिनेट डिले तो वो क्या करेगी, it will simply commute the sentence of death into one of imprisonment for life. ठीक है, it will क्या करेगी, commute the sentence of death into one for imprisonment for life. ठीक है, thus by the virtue of this judgment Supreme Court ruled that if undue long delay occurs in the execution of death sentence, the condemned person can approach it under Article 32. Court will examine the nature of the delay caused, circumstances which ensued after the sentence was finally confirmed, and the court may consider the question of inordinate delay in the light of all circumstances of the case to decide whether the execution of sentence should be carried out or should be altered into imprisonment for life, and there is no fixed period of delay which could be held to make the sentence of death non-executable. अब एक सवाल उठा था कि आर्टिकल 21 बार करता है क्रूअल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, है ना, तो हैंगिंग तो क्रूअल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट होगी ही. ये आर्ग्यूमेंट एडवांस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने इन द केस ऑफ दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. साइटेशन इज AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1155. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्रूअल पनिशमेंट ऑट नॉट टू बी इम्पोज्ड and unanimously pronounced that hanging by rope was a constitutional method to execute
the judicially awarded death sentence. And section 354 subsection 5 of the Criminal Procedure Code prescribes hanging as the mode of execution is a just, fair and reasonable procedure and does not violate Article 21. As far back as Bachan Singh versus State of Punjab, the central government has already discharged the burden of proof that the hanging is the best and the least painful method of carrying out the death sentence. Neither electrocution, nor lethal gas, nor shooting, nor even a lethal injection has any distinct or demonstrable advantage over the system of hanging. Next आते हैं मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. सेक्शन 303 of IPC was struck down. And it was struck down because it was unreasonable and arbitrary and it violated Article 21. ठीक है. उसमें ये था कि अगर लाइफ कॉन्विक्ट किसी का मर्डर कर दे तो उसको सिर्फ डेथ सेंटेंस ही मिल सकता है. उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने. और उस जजमेंट में ये भी एम्फसाइज किया था कि द लास्ट वर्ड on the question of justice and fairness lies with the judiciary, not with legislature. It is for the courts to decide whether the procedure prescribed by law for depriving a person of his personal liberty is just, fair or reasonable or not. Legislature नहीं decide कर सकता. अब 2-3 केसेस में डैमेजेस पे भी डील कर लेता हूँ. जैसे खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसको भागलपुर ब्लाइंडिंग केस भी कहते हैं. ठीक है, गंगा जल की मूवी देखी है, इसी केस पे है वो. ठीक है, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 928. इसमें पुलिस ऑफिसर्स ब्लाइंडेड सर्टेन प्रिजनर्स एंड द स्टेट वाज मेड लायबल टू पे कंपनसेशन टू देम. ठीक है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली कैन इंजक्ट द स्टेट फ्रॉम डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. लेकिन अगर स्टेट हैज़ डिप्राइव्ड अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, देन कैन इन द एक्सरसाइज ऑफ रिट जुरिसडिक्शन कोर्ट उसको रिलीफ ग्रांट कर सकता है आर्टिकल 21 में. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. वैसे इस केस में थोड़ा वेगनेस थी, बट जस्टिस भगवती took an affirmative view on this question and he thought that if we do not subscribe to this view that we are capable of giving relief to a person whose fundamental right has been violated, then Article 21 would be reduced to a nullity and a mere rope of sand. Because if the officer is acting according to the law, there would be no breach of Article 21. If the officer is acting not according to the law, then the state will argue that he is not responsible for the officer's action and hence there is no violation of Article 21. Then the Supreme Court said that as an interim measure, the state has to meet the expenses of housing of these men in a blind home in Delhi. ठीक, लेकिन अभी यहाँ पे मैटर सेट खत्म नहीं हुआ है, सेट नहीं हुआ है. नेक्स्ट आता है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1086. टॉट पे बहुत लीडिंग केस है, टॉट लॉ में बहुत पूछा जाता है. अब इसके फैक्ट्स ये थे कि मिस्टर रुदल शाह was acquitted by the court of session मुजफ्फरपुर बिहार में in June 1968, but he was released from jail only on 16th October 1982. अक्विट कब हुए हैं? जून 1968 में, और रिलीज कब हुए हैं? 1982 में. ठीक है, this was done only when the habeas corpus petition was moved on behalf of him in the Supreme Court. State authorities failed to place before the court any satisfactory material for his continued detention for such a long period, and Supreme Court in a writ petition under Article 32 awarded rupees 35,000 as compensation to him against the state of Bihar. ठीक है, because he was kept in jail for 14 years after he has been acquitted by a criminal court. अब ये जो sum ordered था by the court, that was an interim measure. ठीक है, it was only as an interim measure. रुदल शाह की जितनी भी सिविल लॉ में जो रेमेडीज़ हैं उनके वायलेशन में उन्होंने नहीं किया था कि भाई अब यही ले लो, अब तुम्हें बाकी रेमेडीज़ में नहीं जा सकते. नो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये तो कंपनसेशन रखेंगे, उसके बाद सिविल लॉ में और बाकी जो रेमेडीज़ लॉ आपको अफोर्ड कर रहा है आप उधर जाइए और स्टेट ऑफिसर्स के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ आप कंपनसेशन मांगे जितना भी डैमेजेस आपका बन रहा है. ठीक है,
It did not preclude the petitioner from suing the state and its officer for appropriate damage. Now this was a very bold departure, and since then it is a locus classicus on this point. एक और केस बताता हूँ, वो है सेबेस्टियन एम होंगरे का, सेबेस्टियन एम होंगरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Citation is AIR 1984 Supreme Court page number 1026. अब यहाँ पे Supreme Court issued a writ of habeas corpus requiring the government of India to physically produce two persons before it. These persons were taken to a military camp by Jawans of the army. The government failed to produce them, expressing its inability to do so. Court found the explanation given by the government to be untenable and incorrect. सच तो ये था कि the persons have met an unnatural death. In the circumstances, Supreme Court, keeping in view of the torture, agony and the mental oppression which the wives of the person in question had to pass, instead of imposing fine on the government for civil contempt of the court, required that as a measure of exemplary cost, government must pay 1 lakh to each of the aforesaid two women. ठीक है, मतलब वो जो दो लोग थे जो कस्टोडियल वायलेंस में मारे गए थे, गवर्नमेंट ने बोला कि अरे वो तो गायब हो गए. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भाई, आप 2 लाख 1 लाख की कंपनसेशन दोनों वुमेन को दीजिए, उनकी वाइफ्स को दीजिए. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ बोमा चरण ओराउन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार decided on 12th August 1983 very categorically said that anyone deprived illegally of his life or personal liberty can come before it and ask for compensation for a violation of his fundamental right under Article 21. Now, in this case, the petitioner was an under trial prisoner and was detained in a lunatic asylum for 6 years after he had been certified as fit for discharge. Court awarded him rupees 15,000 as compensation. Court observed that no amount could possibly compensate Oran for living in a lunatic asylum for 6 years. एक केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 494. ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है. इसमें सुप्रीम कोर्ट अवॉर्डेड रुपीज़ 50,000 कंपनसेशन टू द petitioner फॉर हिज इलीगल डिटेंशन इन पुलिस कस्टडी. ही वॉज एन MLA, ठीक है, भीम सिंह वॉज एन MLA. तो ये जा रहे थे, डिटेन कर लिए गए थे, एंड सुप्रीम कोर्ट अवॉर्डेड हिम कंपनसेशन और एग्जेम्पलरी कॉस्ट इम्पोज किए थे स्टेट पे. फिर एक केस था सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 513. इस केस में स्टेट वाज हेल्ड लायबल टू पे कंपनसेशन टू द मदर ऑफ द डिसीज्ड हु हैड डाइड बिकॉज ऑफ पुलिस बीटिंग एंड असॉल्ट. ठीक है, तो भाई डिसीज तो ऑब्वियसली डिसीज हो गए, तो उनकी जो मदर थी उनको कंपनसेशन अवार्ड की गई. ठीक है, दीज आर वेरी हॉरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स. अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत दुख भी होता है कि हमारी कंट्री में नहीं है ऐसा, ऑल ओवर द वर्ल्ड. यूनाइटेड स्टेट्स में तो इससे भी वर्स है. ठीक है, लेट अस नॉट टॉक अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में लिटरली इससे भी ज़्यादा वर्स है. दैट इज़ एंटायरली अ पुलिस स्टेट. बट नंदलेस हमारे यहाँ भी बहुत बुरा है, अच्छा नहीं लगता है कि हमारे सिटीजन्स के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं. एंड वी आर रीडिंग इट, वी हैव टू रीड इट एंड वी हैव टू इन्फोर्स इट, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि आगे किसी इनोसेंट के साथ ऐसा ना हो. खैर, नेक्स्ट इन लाइन ऑफ जजमेंट इज नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1960. In this case, Supreme Court awarded damages in case of police custodial death, and Supreme Court said that Article 32 imposes an obligation on the court to forge new tools which may be necessary for doing complete justice. What happened in Neelavati Behra's case was that the petitioner's son was taken into police custody in connection with the investigation of an offence of theft. Next day, his dead body was found on the railway track. Court treated it as a case of custodial death, as the body bore many injury marks, and court awarded a compensation of rupees 1,50,000 to the petitioner because Article 21 here also was violated. Next case पे आते हैं इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. A family of 7 persons was abducted by Punjab police. A habeas corpus petition was filed in the Supreme Court by the family relation for the release of these persons from the police custody. The government admitted in the court that these persons were abducted by the police, but it was not yet known whether these persons were dead or alive. After a review of the fact, the court directed the
director of CBI to investigate the matter personally and make a report to the Supreme Court, as the court was unwilling to entrust the investigation of abduction and presumable liquidation of the 7 persons to the Punjab police. Liquidation का सुप्रीम कोर्ट ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था कि वो लोग मर चुके हैं. Supreme Court maintained that an independent investigation at a very high level was called for. Subsequently, Director of CBI made an inquiry report as directed by the court. Director reported that these 7 persons has been liquidated by the police. Consequently, court awarded damages amounting to 1.5 lakhs to the legal representative of each of the persons killed, and court expressed strong disapprobation of the conduct of the Punjab police. केस का नाम है इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1995, Supreme Court page number 312. So I think I have categorically proved it to you that it is a settled law that in public law claim for compensation, it is a remedy available under Article 32 or Article 226 for the enforcement and protection of a fundamental and human right and the defense of sovereign immunity, जो अक्सर ऐसे केसेस मिली जाती है, would be inapplicable. ये जितने भी मैंने केसेस बताए यहाँ पे किस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है. ठीक है, तो सॉवरेन इम्यूनिटी यहाँ पे काम नहीं करेगी. खैर सॉवरेन इम्यूनिटी पे भी अपना एक अलग से डिस्कशन है टॉट पे. अब हर चीज़ में तो लॉ में न्यूआंसेस हैं भाई, क्या करें. तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिफेंस बीइंग अवेलेबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. It is a practical and inexpensive mode of redress available to the contravention made by the state, its servants, its instrumentalities, a company or a person in the purported exercise of these powers and the enforcement of the rights claimed, either under the statute or license issued under the statute, or for the enforcement of any right or duty under the constitution or the law. ठीक है, और केसेस बताता हूँ. एक केस है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1203. बहुत सारे केसेस हैं वैसे इस पे, लेकिन PUCL के तो बहुत सारे ही केसेस हैं, लेकिन ये एक और बताता हूँ. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अवॉर्डेड कंपनसेशन व्हेन सर्टेन पर्सन्स पिक्ड अप बाय द आर्मी डिसअपीयर्ड. द केस अरोज अंडर आर्टिकल 226 इन गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय द वे ऑफ अपील. द मणिपुर पुलिस किल्ड 2 persons alleged to be terrorists in a fake encounter. Supreme Court held that this could not be done even in a disturbed area. It violates Article 21 as it is taking away life without any reasonable, fair and just procedure. State raised the defense of sovereign immunity and court awarded 1 lakh damages to the family of each as compensation, and the defense of sovereign immunity was denied. Next case is Chairman Railway Board versus Chandrima Das, AIR 2000, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 988. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, शॉर्ट सा है. इन दिस केस अ बांग्लादेशी वुमन वाज गैंग रेप्ड बाय सम रेलवे एम्प्लॉयज. Damages were awarded to her against the railway administration. Supreme Court ruled that the relief could be granted under Article 226 as there was a violation of the fundamental right under Article 21 and not of ordinary right. A foreigner can claim protection under Article 21 along with Indian citizens. A very harrowing state of affairs. इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करना पड़ रहा है. ये सब केसेस सुन के कुछ लोगों को शॉक भी लगता है. खैर क्रिमिनल साइड पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए नॉर्म हो जाता है, लेकिन इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू नो कि होता क्या क्या है रियलिटी में. ठीक है, आप जब तक लॉ जानेंगे नहीं तब तक लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, जब मैं कुछ केसेस बताऊंगा थोड़े से कस्टोडियल वायलेंस पे, फिर एक्सटेंडेड व्यू ले लेंगे आर्टिकल 21 का, जहाँ पे हॉकर्स के क्या राइट हैं, केयर होम, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू प्राइवेसी, इन सब की बातें करेंगे. थोड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी. ठीक है, क्योंकि आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की थोड़ी बात करनी थी. ये आर्टिकल 21 का इन्फ्लुएंस वहाँ पे है, एंड दैट इज़ वाई बात करनी ज़रूरी है. इसके बिना कभी भी डिस्कशन आर्टिकल 21 का कंप्लीट हो ही नहीं सकता, बिकॉज आफ्टर द मेनका गांधी जजमेंट criminal justice system of the entire country was revamped, practically revamped. ठीक है, that was the effect of मेनका गांधी जजमेंट. अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे शायद, अगर आपके दिमाग में आ रही होगी तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ. आप सोच रहे होंगे कि
आरसी कूपर ने ए के गोपालन का व्यू तो ओवर रूल कर दिया था। तो मेनका गांधी ने ऐसा क्या खास किया? देखिए, आरसी कूपर ने इंटरलिंकिंग अलाउ कर दी थी, पर उसने आर्टिकल 21 पे कुछ नहीं बोला था, राइट? आर्टिकल 21 पे उसने कोई डिस्कशन नहीं किया था, उसने इंटरलिंकिंग अलाउ कर दी थी कि यस इंटरलिंकिंग इज पॉसिबल। आर्टिकल 21 का जो स्कोप था ना, वो मेनका गांधी में डिसाइड हुआ। और जब स्कोप ही बदल दिया आर्टिकल 21 का कि द प्रोसीजर हैज़ टू बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, बैंक नेशनलाइजेशन केस में आर्टिकल 21 पे थोड़ी ना डिस्कशन था, ये था कि वेदर द फंडामेंटल राइट्स कैन बी इंटरलिंक्ड और नॉट, कि ए के गोपालन की अप्रोच सही है या नहीं। तो इस बात पे तो आरसी कूपर के केस में डिसएग्री कर गए थे सुप्रीम कोर्ट बाय मेजॉरिटी, दैट नहीं, ये जो ए के गोपालन केस में अप्रोच है दैट एवरी फंडामेंटल राइट इज एन आइलैंड इन इटसेल्फ, इट इज एन इनकरेक्ट अप्रोच एंड कैन नॉट बी अलाउड टू बी सस्टेन्ड। हाउएवर, एज फार एज इंटरलिंकिंग इज कंसर्न दैट कैन बी अलाउड, ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर इंटरलिंक्ड। लेकिन आर्टिकल 21 पे कोई एक्सप्रेस उनका वो नहीं था डिस्कशन, एक्सप्रेस क्या यही कह सकते हैं, था ही नहीं उसमें। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 वॉज प्राइमरली इन इशू, उनका इंटरलिंकिंग अलाउ किया था, ठीक है। और गोपालन के इस आइलैंड नेशन फंडामेंटल राइट वाले जो व्यू थे कि एवरी फंडामेंटल राइट इज़ एन आइलैंड नेशन सेपरेट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फ्रॉम एवरी वन एल्स, ये व्यू को गलत करार दिया था। मेनका गांधी ने स्कोप आर्टिकल 21 का सुपर एम्फसाइज किया है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कर दिया है, लिटरली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। आपको मैंने जितना भी जजमेंट अभी तक बताए हैं, बहुत सारे बताए हैं, मतलब इन लेक्चर्स में, सबके पीछे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। एक भी जजमेंट ऐसा नहीं है जिसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बेस लेके ना कोट किया हो। दैट जजमेंट इज द बैकबोन ऑफ ऑल ऑफ दीज जजमेंट जिससे आपका फंडामेंटल राइट आ रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल 21 में। सो अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, ठीक है। उसका जो स्कोप है उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई वुड सी यू टुमारो।